Hello everyone. Today is the day 5 of the 30 days problem series or just series for the Sicily. If you are not following, still go and watch the playlist. Today we are going to solve the problem, another problems on string. Again, the problem link was already given in description of yesterday's problem. So if you haven't tried the problem, go and check out the problem once. The link is given in the description. And if you have the problem, so let's just start with the explanation of the problem. First of all, I will explain what does the problem actually wants you to do. So the problem is specifying that there is a string given to you, which is a binary string. Now you need to count the substring which are having k number of ones. So suppose k equal to 1 and this is the string given to you. So can you say this is a substring which is having one number of ones in it? Is this a substring as well which is having a one number of ones in it, right? Can it be a substring? No, because it is having two number of one and 2. So this substring is not possible. Then which one will be possible? Again, this will be a substring which will be possible. Then this will be a substring which will be possible. Then this will be a substring which will be possible. And then this will be a substring which will be possible. So you can see there are total 2 and 4, 6 possible substrings which are having k equal to 1. That is one number of ones in it. Now the question will be how to actually find it. So you can consider calculating all substrings and finding the number of ones in it, but that will be having a time complexity of n square. And n, I guess it's 10 to power 6. So again, you cannot go to n square, you have to do it in O of n only. So how will we do it? See, this is a very easy problem actually. See, see here, suppose this is a window where you have satisfied the situation of k equal to 1, that is one k number of ones. Now what we need to check, how much we can extend the window. मतलब यार ये विंडो, एक विंडो जो पूरा है वो तो एक सबस्ट्रिंग बनेगा ही, बट उस विंडो को और कितना एक्सटेंड कर सकते हैं. इस केस में हमने देखा हम उसको सिर्फ राइट में एक्सटेंड कर पा रहे थे, पर ये वाली जो विंडो थी, इस केस में हमने क्या देखा, हम वो विंडो तो ले ही रहे हैं, बट साथ ही साथ उस विंडो को हम राइट में एक्सटेंड कर पा रहे हैं, उस विंडो को लेफ्ट में एक्सटेंड कर पा रहे हैं, और इस विंडो को लेफ्ट और राइट दोनों में एक्सटेंड कर पा रहे हैं. इसकी वजह से चार सबस्ट्रिंग्स बनी है इसमें. तो बेसिकली हमारा काम क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट द विंडोज एंड वी जस्ट नीड टू चेक कि उसके आगे पीछे जीरोस कितने. के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो लेट्स टेक द एग्जांपल कि ओके, सपोज k विल बी 2 हियर, और यहाँ पे एक जीरो पहले होता, k इक्वल टू 2 है एंड इससे पहले भी एक जीरो होता, ऐसा कुछ है. सो नाउ व्हाट इज द केस, हम लोग को ऐसी सबस्ट्रिंग चाहिए, ऐसा विंडो चाहिए जिसमें टू नंबर ऑफ वंस हो. तो ऐसे कितने, ऐसे कौन सी विंडो है, एक यही विंडो है 101 वाली विंडो. इफ आई विल हाईलाइट इट तो सिर्फ ये वाली विंडो है, तो ये एक विंडो तो होगी. नाउ व्हाट, तो फिर आंसर में वन ऐड करेंगे, फिर हम देखेंगे इनके राइट में कितने जीरोस हैं, वन. लेफ्ट में कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, तो लेफ्ट में भी हम वन से एक्सटेंड कर सकते हैं, तो हम लेफ्ट के लिए भी एक वन ऐड कर देंगे. फिर हम चेक करेंगे कि हम लेफ्ट और राइट दोनों में कितना एक्सटेंड कर सकते हैं. तो फिर सिंस यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे भी वन है, तो हम वन इंटू वन ऐड करेंगे. दैट इज वन इंटू वन इज अगेन वन, बट हमने वन इंटू वन ऐड किया और टोटल आंसर कितना हो गया, फोर. सो इस केस में टोटल आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, फोर. तो यू कैन ड्राई रन एंड ट्राई इट. हम लोग इसका दूसरा एक केस लेके देखते हैं. ओके, सो हमने ये केस लिया है जहाँ पे एक की वैल्यू टू है और ये स्ट्रिंग दी हुई है और इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स फाइंड करने हैं. तो हम क्या करेंगे, वी विल सी अ विंडो ऑफ टू वंस. ये एक विंडो है जहाँ पे दो वन है. हम क्या चेक करेंगे, इस विंडो को लेफ्ट में कितना एक्सटेंड, तो आंसर में हमने वन ऐड कर दिया. फिर हमने देखा कि लेफ्ट में कितना एक्सटेंड कर पा रहे वन से, तो हमने आंसर में वन और ऐड कर दिया.
हमने देखा हम राइट में कितना एक्सटेंड कर पा रहे हैं, तो राइट में हम लोग कुछ भी एक्सटेंड नहीं कर पा रहे थे। तो फिर बेसिकली राइट में जीरो और लेफ्ट में वन, तो वन इंटू जीरो विच इज जीरो। इस विंडो के लिए हमारा आंसर क्या बन के आया, टू। फिर हम नेक्स्ट विंडो पे गए। नेक्स्ट कौन सी विंडो है जिसमें टू नंबर ऑफ वंस है, ये। इस विंडो पे हमने देखा, इस विंडो पे के लिए हमने वन ऐड किया। देन इस विंडो को लेफ्ट में कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, वन से, तो इसके लिए भी हमने वन ऐड किया। इस विंडो को हम राइट में कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, अगेन वन से, तो हमने इसके लिए वन ऐड किया। देन इस विंडो को लेफ्ट और राइट में कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, सो एक ही कर सकते हैं, बिकॉज लेफ्ट में भी एक है, राइट में भी एक है। अगर लेफ्ट में दो होते तो क्या होता, सपोज ये वन ना हो के जीरो होता, तो हम क्या करते हैं, एक बार ये सब स्ट्रिंग लेते हैं और दूसरी बार में ये सब स्ट्रिंग लेते हैं, तो बेसिकली जितने टू इंटू वन आंसर हो जाता। बट सिंस इस केस में लेफ्ट में भी वन है और राइट में भी वन है, तो हम बोल सकते हैं कि वन इंटू वन टाइम्स, वन इंटू वन टाइम्स विच इज वन टाइम्स हम इंक्रीज करेंगे, तो इस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग के लिए आंसर क्या आएगा, फोर। देन नेक्स्ट कौन सी विंडो होगी, ये वाली। इस विंडो के लेफ्ट में कितना है, जीरो, राइट में कितना है, एक। तो फिर हम क्या बोलेंगे, एक तो ये विंडो खुद लेफ्ट में है जीरो और राइट में है वन, और लेफ्ट और राइट का मल्टीप्लिकेशन करने पे फिर से हमें क्या मिल जाएगा, जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, इस वाले सबस्ट्रिंग के लिए भी हमें दो ही आंसर मिलेगा। देन नेक्स्ट इज दिस वन, इस वाले के लेफ्ट में कितना है, वन, तो वन तो ये खुद दे रहा था, इसका लेफ्ट वाला वन देगा। राइट में कितना है, राइट में कुछ भी नहीं है, तो जीरो। एंड देन अगेन लेफ्ट और राइट का मल्टीप्लिकेशन विच इज वन इंटू जीरो इक्वल टू जीरो अगेन। तो वी कैन सी ये वाला भी सबस्ट्रिंग हमें दो आंसर देगा। तो टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग कितने हो गए, टू, टू फोर, फोर प्लस फोर एट, एट प्लस टू टेन, तो इसका टोटल आंसर कितना हो गया, टेन। तो आई होप एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा कि क्या करना है। बेसिकली हमें उन विंडोज को फाइंड करना है और उसको चेक करना है कि उसके लेफ्ट में कितने जीरो है, उसके राइट में कितने जीरो है। लेफ्ट वाले जितने हैं उनको ऐड करना है, राइट वाले जितने हैं उनको ऐड करना है, देन उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन ऐड करना है। सो एज सिंपल एज इट इज। एंड नाउ हाउ वी विल कोड इट। सो बेसिक एक स्लाइडिंग विंडो टाइप का हम कोड कर सकते हैं कि पहले तो हम प्रीफिक्स और सफिक्स निकालेंगे, कि प्रीफिक्स और सफिक्स हमें ये बताएगा कि मेरे पीछे कितने नंबर्स ऑफ जीरो है, मतलब मैं कितना एक्सटेंड कर सकता हूँ, ये प्रीफिक्स बताएगा। और सफिक्स क्या बताएगा कि मेरे आगे कितने नंबर ऑफ जीरो है, मैं वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो आई गेस कैलकुलेटिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स इज क्वाइट इजी, उसमें मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ बहुत कुछ बताने वाली चीज है। एंड देन कैलकुलेटिंग दिस थिंग इज ऑल्सो ईजी, कि हम लोग एक विंडो पे जा रहे हैं, अब ये विंडो हम कैसे निकालेंगे। सो यू कैन मेक टू पॉइंटर्स एंड उससे आप कर सकते हो स्लाइडिंग विंडो। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मार्क कि वन कहाँ कहाँ पे, वन फर्स्ट पोजीशन पे, देन वर्क वन सेकेंड थर्ड पोजीशन पे, देन फोर्थ पोजीशन पे, देन सिक्स पोजीशन पे, एंड देन एट पोजीशन पे। तो हमें विंडो कितनी साइज की चाहिए थी, टू साइज की। तो टू साइज की विंडो चाहिए थी, तो हम क्या करेंगे, थ्री के सफिक्स में देखेंगे एंड वन के प्रीफिक्स में देखेंगे कितने जीरो हैं। देन नेक्स्ट टाइम हम थ्री और फोर वाला विंडो लेंगे, तो फिर हम लोग थ्री के प्रीफिक्स में देखेंगे, फोर के सफिक्स में देखेंगे। देन नेक्स्ट टाइम फोर और सिक्स वाला विंडो लेंगे, तो फोर के प्रीफिक्स में और सिक्स के सफिक्स में देखेंगे। ऐसे ही दो दो का चाहिए तो हम लोग और दो दो के विंडो में चेक करेंगे। वैसे अगर हमें तीन का चाहिए होता तो हम फोर के सफिक्स में और वन के प्रीफिक्स में देखते हैं, नेक्स्ट टाइम थ्री फोर सिक्स आता सिक्स के सफिक्स में और थ्री के प्रीफिक्स में देखते हैं। सो आई गेस ये क्लियर है। मैं एक बार कोड दिखा दूंगा, सो आई गेस इट वुड बी मोर क्लियर। वेरी सिंपल थिंग, जस्ट फाइंड द स्लाइडिंग विंडो, फाइंड द विंडो वेयर द के नंबर ऑफ वंस इज प्रेजेंट, उसके लेफ्ट में कितने एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट में कितने एक्सटेंड कर सकते हैं, उनको ऐड करो एंड देन उनका मल्टीप्लिकेशन ऐड करो। तो एज सिंपल एज इट इज। मैं एक बार कोड दिखा देता हूँ। आई हैव कोडेड इन सी प्लस प्लस, यू कैन ट्राई इट इन जावा एज वेल, इट इज इजी। सो ये के इक्वल टू जीरो का एक अलग से स्पेशल केस मैंने लिखा है कि हाँ, अगर के की वैल्यू जीरो है, मतलब नंबर ऑफ वंस उनको जीरो चाहिए, तो बेसिकली वी हैव जस्ट काउंटेड कि यार कितने नंबर ऑफ ये आ रहा है, कंटिन्यूस जीरोस आ रहे हैं, उनको ऐड कर दिए हैं। तो ये केस मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट लेट्स गो टू द मेन प्रॉब्लम। फर्स्ट वी कैलकुलेटेड प्रीफिक्स विच इज वेरी इजी। जीरो है तो हाँ, प्रीफिक्स आई प्लस वन इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ आई प्लस वन। सिमिलरली सफिक्स ऑफ आई प्लस टू प्लस वन। देन हमने वंस स्टोर किया कि वंस कहाँ कहाँ है, कौन से इंडेक्स पे है। और फिर सिंस हमें के साइज का चाहिए, तो हम के माइनस वन से हमने चालू किया और हम लोग हर के माइनस वन पे चेक कर रहे हैं। मतलब जैसे हमें टू चाहिए था, जब हमें टू चाहिए था तो हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट इंडेक्स से चालू कर रहे थे। तो सेम चीज हमने किया कि हमने यहाँ पे टू माइनस वन लेते फर्स्ट इंडेक्स से हमने चालू किया, और हम लोग के माइनस वन इंडेक्स, मतलब इसके पीछे वाले इंडेक्स तक जा रहे हैं, और इसका पीछे के माइनस वन इंडेक्स का प्रीफिक्स ले रहे हैं और करंट इंडेक्स का सफिक्स ले रहे हैं, और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन।
मतलब प्रीफिक्स मतलब लेफ्ट में कितना एक्सटेंड हो सकता है, राइट में कितना एक्सटेंड हो सकता है, और नथिंग एल्स। एक जो केस तो एक बार कोड को अच्छे से देख लेते हैं, अगर कुछ ना समझ में आया तो यू कैन पुट इन कमेंट्स। प्रीफिक्स कैलकुलेट किया विच इज वेरी इजी, वी हैव कैलकुलेटेड द सफिक्स एरे विच इज अगेन वेरी इजी। कोड इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, so अगर एक कंप्लीट कोड नहीं दिख रहा तो और सबमिशन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। बट बेसिक चीज, फिर वंस की हमने इंडेक्सेस स्टोर किए, फिर हर की विंडो के इंडेक्स के लिए हमने चेक किया कि उसका प्रीफिक्स कितना एक्सटेंड कर सकते थे, उससे सफिक्स में कितना एक्सटेंड कर सकते थे, और दोनों में कितना एक्सटेंड कर सकते थे, which I have complete explained in the code already, sorry, explained in the explanation. So अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। Now the last thing is k equal to zero वाला केस। तो k equal to zero वाला केस देख लेते हैं हम लोग। तो जो k equal to zero वाला केस है वो कैसे है कि यार, जस्ट इमेजिन कि you have a string 0 0 1 0 1 1 1 1 something like this, और k की वैल्यू एक्चुअली में जीरो है। तो इस केस में कितने सब स्ट्रिंग्स बनेंगे वो देखो। एक तो ये, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, जीरो। फिर ये, फिर ये। सो हमने क्या देखा, ओके, एंड देन ये भी एक सबस्ट्रिंग, सॉरी, ये एक भी एक सबस्ट्रिंग बनेगा, ये भी एक सबस्ट्रिंग बनेगा, ये भी एक सबस्ट्रिंग बनेगा। इज देयर एनीथिंग एल्स रिमेनिंग? टोटल सबस्ट्रिंग कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 6। तो हाँ, बेसिकली हमने क्या देखा कि जब एक जीरो मिला तो सबस्ट्रिंग कितने बने, एक। जब दो जीरो मिला तो दो सबस्ट्रिंग पॉसिबल थे, एक ये और एक वो खुद। फिर जब तीसरा जीरो मिला तो तीन सबस्ट्रिंग पॉसिबल थे, एक ये, एक उसकी दो, और तीन। मतलब बेसिकली यू कैन से जितने कंटिन्यूस जीरोस मिलते जा रहे हैं उतना आंसर में ऐड करते जाना है। पहले एक मिला था तो आंसर वन हो गया, फिर दो मिला तो आंसर थ्री हो गया, 1 + 2। फिर तीन मिला तो आंसर 3 + 3 6 हो गया। फिर वन मिल गया तो कुछ नहीं ऐड हुआ। फिर यहाँ पे एक ही मिला तो आंसर में एक और ऐड हो गया, तो 6 + 1 7। फिर से एक ही मिला तो आंसर में एक और हो गया, 6 7 + 1 8। तो या दिस इज अ वेरी सिंपल केस, मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो yeah, so this was basically about the solution. If you have any doubt, or if you think there's a problem, some problem with the video, you can put in the comment box what you like, what you don't like about the video. And if you are still not following the series, then what are you waiting for? Go and follow the playlist on the channel, and I will see you in the next one. Again, next problem link is given in the description, so go and check out. Try to solve by your own. I will see you in the next one. Thank you.